नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। प्रोग्राम बीएड एंड बीए बीएड। बीएड सेकेंड सेमेस्टर, बीए बीएड फिफ्थ, एक्सेट्रा। Students, today we will discuss on ideal teacher session. First in English, then Hindi. First of all, introduction. An ideal teacher is like a glowing and well-working lamp that burns itself to bring the students out from the darkness of ignorance and fills their lives with the light of knowledge. He illuminates the lives of his students, showing them the right path and helping them to lead a successful and blissful life. An ideal teacher is like a role model in the life of every student whom he loves to follow blindly. A good teacher helps students almost in every walk to life to achieve their goals. He is one whom a student fondly remembers even after he leaves the institute. Even in our ancient literature, the role of teacher has been described as more than good in the life of a teacher. One by one, characteristics, qualities, ideal teachers. First is passion for teaching. A good teacher should be passionate about teaching. He should understand the psychology of the students and should try to mold even an initiative student into an intensive one. They should be eager to influence students' lives and leave a long listening impact. Second is love for students. He should love working with students and treat them as his own children. He should be impartial and teach every student without any bias. He should be attentive to one and all and try to bring out the best out of them. Third is a magnetic personality. The personality of an ideal teacher should be such that can easily draw the attention of every student towards him. He should create such an impact that every student would love to attend his class. And fourth is strong rapport with students. He should develop a strong rapport with every student and create such a bond of love and affection that every student would trust him and think about to be their real well wisher. And fifth characteristics is effective discipline skill. A good teacher should know how to maintain proper discipline in the class without reprimanding the students. He should be able to create a positive atmosphere of learning and teaching in the classroom. Sixth is good classroom management skill.
An ideal teacher should possess good classroom management skills. He should have a fair knowledge of students' psychology. It would help him manage his class more effectively and draw better learning habits amongst the students. And next characteristic is teaching style. He should have a lucid style to teaching so that the students should never feel bored. He should engage the students to ask questions related to the topic to clear their doubts if any. Next characteristics is strong command over subject matter. This is one of the aspects where a good teacher never compromise. An ideal teacher should possess a strong command over his subject. He should always keep himself updated with the latest development in the fields of education and increase his knowledge based on the latest trends. It would help him to answer every question of the students and in turn make the subject interesting from there. And next is clear objectives for every lesson. A great teacher should always have a clear objective in mind about the lesson he is about to teach in the class and ensure that that objective is met at the end of the period. And next is good communication skills. A great teacher should have good communication skills. He should have regular integration with parents, guardians of the students and should keep them informed about the progress of the students on different issues. He should also inform that if ever he notice any drawbacks or weakness in any of them and suggest correctional measures. And next is one should be healthy. The teacher should not suffer from any physical illness. And last characteristics is he should be happy due to the teacher being cheerful and students have a passion in their studies. This session prepared डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो टॉपिक है वो आदर्श शिक्षक. सबसे पहले प्रस्तावना परिचय. एक आदर्श शिक्षक एक चम्मच और अच्छी तरह से काम करने वाले दीपक की तरह काम करता है जो छात्रों को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाने के लिए खुद को जलाता है और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है. वह अपने छात्रों के जीवन को सही रास्ता दिखाता है और उन्हें एक सफल और आनंदित खुशमय जीवन जीने में हेल्प करता है, मदद करता है. एक आदर्श शिक्षक प्रत्येक छात्र के जीवन में एक रोल मॉडल की तरह काम करता है जिसे वह आंख बंद करके अनुसरण करना पसंद करता है. एक अच्छा शिक्षक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है. वह जिसे एक छात्र संस्थान छोड़ने के बाद भी याद करता है. हमारे प्राचीन साहित्य में भी शिक्षक के जीवन में शिक्षक की भूमिका को भगवान से अधिक बताया गया है. अब देखिए क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं आदर्श शिक्षक की. एक एक पॉइंटों के बिहाफ पर हम बात करेंगे. सबसे पहला शिक्षण के लिए जुनून. एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाने का शौक़ होना चाहिए. उसे छात्रों के मनोविज्ञान को समझना चाहिए और एक छात्र को भी चौकस करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्हें छात्रों के जीवन को प्रभावित करने और एक लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव को छोड़ने के लिए उत्सुक होना चाहिए. दूसरा है छात्रों के लिए प्यार, स्नेह. उसे छात्रों के साथ काम करना पसंद होना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों की तरह मानना चाहिए. वह निष्पक्ष होना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के हर छात्र को पढ़ाना चाहिए. उसे एक और सभी के प्रति चौकस रहना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ लाने की उसे कोशिश करनी चाहिए. अगला है एक चुंबकीय अर्थात
आकर्षक व्यक्तित्व का होना। एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो हर छात्र का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच सके। उसे ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए कि वह हर छात्र, हर विद्यार्थी अपनी कक्षा में जाना पसंद करें। अगला है छात्रों के साथ मजबूत तालमेल रखने वाला होना चाहिए। उसे प्रत्येक छात्र के साथ एक मजबूत तालमेल विकसित करना चाहिए और प्यार और स्नेह का ऐसा बंधन बना देना चाहिए कि हर छात्र उस पर विश्वास करे और उसे अपनी वास्तविकता बताए और शुभचिंतक समझे। अगला है प्रभावी अनुशासन कौशल रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को पता होना चाहिए कि छात्रों को फटकार लगाए बिना, डांटे बिना कक्षा में उचित अनुशासन कैसे बना रह सकता है। उसे कक्षा में सीखने और सिखाने का सकारात्मक माहौल बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा अगला है अच्छा कक्षा प्रबंधन कौशल रखने वाला हो। एक आदर्श शिक्षक के पास अच्छे कक्षा प्रबंधन कौशल होने चाहिए। उसे छात्रों को मनोविज्ञान का उचित ज्ञान होना चाहिए। यह उसे अपनी कक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और छात्रों के बीच बेहतर सीखने की आदतों को विकसित करने में मदद करता है। अगला है शिक्षण शैली सुदृढ़ होनी चाहिए उसकी। उनके पास शिक्षण की एक आकर्षक शैली होनी चाहिए ताकि बच्चों को कभी भी बोरियत महसूस न हो। उसे विद्यार्थियों को अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए, डाउट्स को दूर करने के लिए विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद अगला है विषय वस्तु पर उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। यह उन पहलुओं में से एक है जहां एक अच्छा शिक्षक कभी समझौता नहीं करता है। एक आदर्श शिक्षक के पास अपने विषय पर एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। उसे हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिए खुद को अपडेट करना चाहिए और नवीनतम रुझानों के आधार पर उसे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अगला है हर पाठ के लिए, हर चैप्टर के लिए स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। एक महान शिक्षक को हमेशा कक्षा में पढ़ाने वाले पाठ के बारे में एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्देश्य अवधि के अंत में मिले। इसके अलावा अगला है अच्छा संचार कौशल होने वाला। एक महान शिक्षक के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। छात्रों के माता पिता, अभिभावकों के साथ उनकी नियमित बातचीत होनी चाहिए और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर छात्रों की प्रगति के बारे में सूचित करना चाहिए। उन्हें यह भी सूचित करना चाहिए कि क्या कभी उन्होंने किसी भी कोई कमी या खामियों को नोटिस किया है और सुधार के उपाय भी उसे बताना चाहिए। अगला है स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। शिक्षक किसी भी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये उसे ध्यान होना चाहिए। अगला है वह हंसमुख होना चाहिए। शिक्षक के हंसमुख होने से विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बोर है, हंस नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ये सभी गुण कहीं ना कहीं एक अच्छी टीचर में, अच्छे शिक्षक में होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये जो सेशन है वो ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी के डिजिटल वर्जन 2.0 के द्वारा तैयार किया गया है। आगे के सेशन आप देखते रहिए। धन्यवाद।